منشیات فروش انمول عرف پنکی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ عدالت ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنائے گی۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کراچی کی عدالت میں پیش۔ عدالت پیشی پر ملزمہ کا شور شرابہ۔ ملزمہ کی عدالت پیشی پر مجھے چھوڑ دو کی صدائیں۔ اس پر بات کریں گے، اپنے نمائندے ناصر بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر بتائے گا کب تک فیصلہ سنایا جائے گا اور کتنے دن کا ریمانڈ مانگا گیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ کے مسٹریٹ ہیں، ڈیوٹی مسٹریٹ، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے۔ استدعا کی گئی ہے کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے، جبکہ 11 جو مقدمات ہیں ان کا ریمانڈ پیپرز بھی پیش کیے گئے ہیں، اس میں بھی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ اس وقت ملزمہ کو ضلع وسطی کی عدالت میں جو ڈیوٹی مسٹریٹ ہیں ان کے روبرو پیش کیا گیا ہے اور وہاں تفتیشی افسر نے ملزمہ کی ریمانڈ کی استدعا کی ہے، جس پہ عدالت نے ریمارک دیے کہ اس کیس کا ریمانڈ چاہیے۔ پہلے 10 کیسز میں ریمانڈ حاصل کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے کہا ملزمہ کو دفعہ 512 کے تحت جو ہے مفروض قرار دیا گیا تھا۔ یہ وکیل صفائی لیاقت گبول نے عدالت کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مفروض ملزم کا گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ نہیں ہوتا۔ اس پر وکیل نے یہ بھی اپنے موقف میں کہا کہ لاہور سے گرفتار کر کے لائے ہیں، قتل کے مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست پر 3 روزہ ریمانڈ ہوا تھا۔ یہاں پر جب عدالت نے ملزمہ کو وقت کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس پر عدالت وہ کہنے لگی کہ میں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہوں گی یا چھاپے پر پریشان ہوں گی۔ عجیب سی باتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ کی جا رہی ہیں۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 3 کروڑ روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے اس کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے اور تفتیشی افسر نے یہ بھی کہا کہ منشیات کے مقدمات میں فیملی بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ وکیل جو تھے ان کے میر ہدایت اللہ جو دوسرے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میری موکلہ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی جا رہی ہے، جبکہ انمول عرف پنکی نے عدالت سے کہا کہ میڈیا سے بات کرنی چاہتی ہوں، جس پر عدالت نے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو عدالت نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جہاں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جہاں پہلے ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، وہاں سے اگر جو بھی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا ریمانڈ دیا جائے یا جوڈیشل کسٹڈی کی جائے۔ تو یہ تمام تر صورتحال اس وقت جو ہے وہ ضلع وسطی کی عدالت میں ملزمہ موجود ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد ضلع جنوبی میں ریمانڈ کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں بھی جو ہے وہ فیصلے کی کاپی دی جائے گی اور اس کے بعد وہاں کے مسٹریٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جب ملزمہ کو پیش کیا گیا تو احاطہ عدالت میں ملزمہ جو ہے اس کو عبایا میں پیش کیا گیا تھا، اس کی منہ پہ کپڑا تھا اور احاطہ عدالت میں داخل ہوتے ہی جب اس کی نظر کیمروں پہ پڑی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پہ تشدد کر رہی ہے پولیس، مجھے اس فیملی کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نام لوں، جو نام ہم بتائیں وہ لو۔ یہ تمام تو صورتحال سے اس نے چیختے چلاتے ہوئے عدالت کے احاطے میں بات کی۔ اس کے علاوہ اس نے یہی باتیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے، عدالت کے روبرو دہرائیں۔ پھر عدالت نے سرکاری وکیل کا یہ موقف تھا کہ اس کے ریمانڈ کی استدعا ہے کیونکہ اس سے مزید تفتیش کرنی ہے، بہت بڑا گینگ ہے اس کا جسے گرفتار کرنا ضروری ہے۔ وکیل صفائی جو ہے وہاں پر بھی یہ استدعا کرتے رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی کیا جائے، جس پر عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ضلع وسطی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں کی صورتحال ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے جو محفوظ کیا ہوا ہے ریمانڈ کے حوالے سے وہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح ناصر، یہ بھی کہیے گا ملزمہ کا کیا کسی پرانے کیس میں بھی نام درج ہے اور کیا اس مقدمے میں مزید افراد کی گرفتاری کا امکان بھی موجود ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت عدالت میں ریمانڈ پیپرز پیش کیے گئے ہیں ان کا مقدمات کا تعلق 2021، 2022، 2025 یہ مقدمات ملزمہ کے خلاف درج کیے گئے تھے، جس میں وہ مفرور تھی کیونکہ جو پہلے سے گرفتار لوگ تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ملزمہ نے ہمیں یہ منشیات دی ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں یا جو ہم رائزرز کو پکڑا گیا۔ یہ تمام سب چیزیں جو ہیں اس طرح کے مقدمات جو ہیں 6 مقدمات گزری کے ہیں منشیات کے، 4 مقدمات جو ہیں وہ آج جو ریمانڈ پیپر جس میں پیش کیا گیا ہے بغدادی کے وہ 4 ہیں، جبکہ ایک ریمانڈ پیپر جو ہے وہ پہلے ہی
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू पेश कर दिया गया था और वहां से उसका रिमांड हासिल कर लिया गया था एक मुकदमे में। इसके अलावा आज जो हमने देखा कि SIU सेंट्रल जिला बस्ती का जो स्पेशल यूनिट है पुलिस का, उसकी तरफ से भी एक रिमांड पेपर पेश किया गया। मंशियात का उसमें मुकदमा है और वो राइडर के जरिए जो है मंशियात जो है सप्लाई करती थी। तो राइडर की गिरफ्तारी के बाद जो है तमाम तर चीजें सामने आई। तो 2025 का वो मुकदमा था। तो तमाम तर मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता सालों के हैं जो इस पर दर्ज थे और जिसमें ये मफरूर थी। तफ्तीशी अफसरान का यही कहना है कि आज अदालत हमने गिरफ्तारी जो है वो 24 घंटे के बाद डाल दी थी। गुज़िश्ता रोज रात जो है गिरफ्तारियां डाली गई है इन 11 के 11 मुकदमात में और आज अदालत से इस्तदा है कि हमें तफ्तीश जो है के लिए रिमांड दिया जाए। बिल्कुल। और नासिर ये कहिए, जिस तरह मुलजिमा ने अदालत में बयान जो दिया है कि मुझे 20 दिन से उठाया गया है, लाहौर से मुझे पकड़ा गया है, इस पर एक तो पुलिस ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, क्या इतनी पुरानी गिरफ्तारी है? और दूसरा ये कहिए कि अभी तक की जो तफ्तीश की है उसमें क्या नई चीज़ें सामने आई हैं? हाँ देखिए, जो बात है गिरफ्तारी के हवाले से, तो कल एक्सप्रेस से करते हुए इनके वकील मीर हिदायतुल्लाह एडवोकेट ने ये इंकशाफ किया था कि 1 मई को उनकी मुवक्किला को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और फिर कराची लाके गिरफ्तारी डाल के दोबारा पेश किया गया है। यही बात मुलजिमा ने आज अदालत को बताई कि 20 रोज पहले से गिरफ्तार किया गया था, लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, फिर कुछ लोग जो है उसको कराची लेकर आए और जहाँ पुलिस के हवाले किया गया। तफ्तीशी जो सूरत हाल है, जो तफ्तीश की सूरत हाल है, उसमें जो भी पेपर्स अदालत में जमा कराए गए होंगे, रिमांड पेपर जो जमा कराया गया होगा वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो भी मामला होंगे वो पुलिस फाइल जो है अदालत में जमा है। और आज जो है वो क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जब ठीक है, नासिर भट्ट हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ICC का सालाना इजलास भारतीय शहर अहमदाबाद में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग में शिरकत वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीली समेत अहम अमूर पर मुशावरत होगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने का इम्कान है। ICC का सालाना इजलास भारतीय शहर अहमदाबाद में होगा। कौमी टीम के लिए टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 116 रन पर पवेलियन लौट गए। महमूदुल हसन जो एक खाता न खोल सके, तंजीद हसन 26 और मोमिनुल हक 22 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 29 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने। मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। अहम खबर है, कौमी टीम के लिए टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन जारी। कोयटा से बी कौमी शाहराह की तोसी का मंसूबा मुकम्मल। NHA ने पहाड़ों को काट कर शाहराह को न सिर्फ कुशादा किया बल्कि ढाढर के करीब सुरंग को भी वसी किया है। मजीद बता रहे हैं इरफान राना। वादिया बोलान से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। कोयटा से भी कौमी शाहराह की तोसी का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। संगलाख पहाड़, दरे बोलान की बल खाती सड़कें, दुश्वार गुजार रास्ते और सफर की सोबतें अब माजी का किस्सा बनती जा रही हैं। NHA ने बोलान पास के 20 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में भारी मशीनरी की मदद से संगलाख चट्टानों को काट कर शाहराह को कुशादा किया, जिससे सफर अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज और आसान हो गया है। हमने ये तकरीबन कोई 7 महीने के अंदर, बल्कि 6 और 7 महीने के अंदर हमने इसको अचीव कर लिया है अपना टारगेट, जिसमें हमने रोड की जो विड्थ है वो 12 मीटर तक पहुंचा दी गई है। ये शाहराह माजी में ट्रैफिक हादसा, अचानक आने वाले सैलाबी रेलों और तवील ट्रैफिक जाम के बायस मुसाफिरों के लिए मुस्तकिल दर्द सर बनती रहती थी। तंग रास्तों और खतरनाक मोड़ों की वजह से मामूली रुकावट भी कई घंटे ट्रैफिक की बंदिश का सबब बनती थी। कमोबेश 20 किलोमीटर का इलाका इसमें इम्प्रूव हुआ है, जिसका वो पहाड़ों की कटिंग है। यहाँ पे सैलाब का इशू और यहाँ पे इस तरह का इशू आ जाता था कि सैलाब की वजह से ये बंद हो जाता था। कुछ ऐसे बोटलनेक्स थे जो हमारे इस खसूसन जो रेनी सीजन में इसमें काफ़ी मसला हो जाता था और ट्रैफिक जाम का इशूज़ था। मंसूबे के तहत डाडर के करीब वाक़या अहम सुरंग को भी कुशादा किया गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों, माल बरदार ट्रकों, मुसाफिर कोचों की आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत भी पैदा हुई है। माजी में इसी मकाम पर गाड़ियों के फंसने और उलटने के वाक़यात मामूल बन चुके थे। घंटों यहाँ पे ट्रैफिक रुकी हुई थी, आर्मी वाले आकर यहाँ ट्रैफिक खोल देते। अभी माशाल्लाह NHA ने ऐसा काम किया हुआ है ना, जो 3-3 गाड़ियाँ गुजर रहे, कोई
कोई मसला नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। दरे बोलान की बलखाती सड़कों को जदीद शाहरा में बदलने वाला ये मनसूबा मुल्तान में सफरी सहूलियात, बैनुल सूबाई राब्तों और तजारती सरगर्मियों के फरोग में कलीदी किरदार अदा करेगा। इरफान राना, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार देते हुए हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। तफसील बताएंगे ज़ेगम नकवी अपनी रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो गया है। दूसरी जानब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने नाकाफी करार देते हुए कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से रोजमर्रा अखराजात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और महंगाई बदस्तूर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ अशाए खुर्दनोश समेत दीगर चीजों की कीमतों में भी कमी लाई जाए। ज़ेगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी और कसीरुल-जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत सिंध ने कारोबारी बरादरी और आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया है। कारोबारी मराकज़ अब साबिका पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत आइंदा भी ऐसे फैसले करेगी जो मईशत, रोज़गार और कारोबारी सरगर्मी के फ़रोग में मुआवन साबित हों। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई केपी, पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान, जीबी और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुँचा। नौकुंडी 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम का डेरा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में सूरज की तपिश के बायस गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जबकि चकवाल, मियांवाली, लिया और डेरा गाजी खान में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। बादस दोपहर पारा चिनार, वजीरस्तान, कालाम, कोहाट, कुरम, हंगू, कर्क और लकी मरवत में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गर्मी बरकरार है, जबकि शिरानी, मसूंग, बारखान, मूसाखेल, योब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में आज मौसम गर्म है। आइंदा 24 घंटों में 15 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्के हैं। हवा में नमी का तनासुब 50 से 80% होने से गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस हो रही है।